شالوم سلام المسیح دوستو، میرا نام ہے عاشر شفیع اور آج کی ویڈیو انجینئر دھروو راٹھی کی ویڈیو کے رسپانس میں ہے جو کہ چند ویک پہلے انہوں نے اپلوڈ کی، جس میں انہوں نے خدا اور مختلف مذاہب کو ایک جیسا دکھانے کی کوشش کی۔ میں بھی آج اس ویڈیو میں کرسچن پوائنٹ آف ویو سے جو انکمپلیٹ اور کانٹیکسچل مسٹیکس انجینئر دھروو راٹھی نے کی ہیں ان کو ہائی لائٹ کروں گا، اور میں نے اس ویڈیو کو 6 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم ٹائم میں اس ویڈیو پہ بات کر سکوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں اپروکسیمیٹلی 75 to 80% ریفرنسز جو ہیں وہ بائبل مقدس میں سے لیے گئے اور انبیاء کی زندگی کو ایکسپلین کیا گیا۔ انفیکٹ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس ویڈیو کا آغاز بائبل مقدس سے ہوا تھا اور اس ویڈیو کا اینڈ بھی بائبل مقدس پہ ہی ہوا۔ اب دوستو، اسی قسم کا کام کچھ سال پہلے ایک سائنٹسٹ رچرڈ ڈاکنز ہے، انہوں نے اپنی کتاب گاڈ ڈیلیوژن میں کیا، جہاں پر انہوں نے بائبل مقدس کو پرائم سینٹر رکھ کر خدا کے بارے میں اپنا آرگیومنٹ رکھا، جس کا جواب ڈاکٹر ڈگ ولیم نے 2008 میں اپنی کتاب دا ڈیلیوڈڈ ایتھیسٹ میں بڑی اچھے طریقے سے دیا، اور میں پوری کوشش کروں گا کسی دن آپ کے ساتھ ڈاکٹر ولیم کے آرگیومنٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے شیئر کروں۔ دوستو، یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انجینئر دھروو اور سائنٹسٹ رچرڈ ڈاکنز میں ایک بہت کامن بات وہ یہ ہے کہ یہ دونوں جانتے ہیں کہ بائبل مقدس از دا بک آف ایویڈنس، اور یہ کرسچنز کا فائنل ٹیسٹمنٹ ہے جو کہ سائنٹیفکلی، ہسٹوریکلی، میتھمیٹکلی اور جیوگرافکلی پروون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنٹسٹ کی یہ بک اور انجینئر دھروو راٹھی کی یہ ویڈیو 75 to 80% ریفرنسز جو ہے وہ بائبل مقدس سے لیتے ہیں۔ اچھا، اب دھروو کی جو ویڈیوز ہیں میں خود بہت سالوں سے دیکھ رہا ہوں، اور ان کی ویڈیوز کا جو پیٹرن ہوتا ہے وہ بہت ہی کمپلیٹ، سیکوینسڈ اور ویل ریسرچ ہوتا ہے۔ اور اب میں آپ کے ساتھ چند ریزنز میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ انجینئر دھروو نے بائبل مقدس کی ٹائم لائن کے اکارڈنگ ویڈیو کیوں بنائی۔ پہلی وجہ، بائبل مقدس ایک کمپلیٹ کتاب ہے جس میں خدا کی کریشن، ڈیوائن پلان، انبیاء کی زندگی، انسان کی سلویشن اور آسمان پہ خدا سے ملاپ کی ڈیٹیلڈ انفارمیشن ہے، نہ کہ جسٹ آؤٹ لائن یا سمری۔ اور انجینئر دھروو یہ جانتے ہیں کہ کرسچنز بائبل مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب سے ریفرنس نہیں دیتے کیونکہ یہ خدا کا فائنل ٹیسٹمنٹ۔ ویڈیو میں آگے چل کے انہوں نے ایک جوئش رابی کی بائبل کمنٹری کی کتاب جس کو مدراش ربا جینیسس کہتے ہیں کہ واقعہ کا ذکر کیا۔ اچھا، اب یہودیوں اور کرسچنز میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ کرسچنز بائبل مقدس کو خدا کا فائنل ٹیسٹمنٹ مانتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے وہ ریفرنس نہیں دیتے، جبکہ یہودی جو تھے انہوں نے بائبل مقدس میں کچھ نہیں لکھا تھا بلکہ وہ الگ الگ کمنٹریز لکھتے تھے، انٹرپریٹیشنز لکھتے تھے بائبل مقدس کے اوپر۔ انہی میں سے ایک کتاب ہے مدراش ربا، جس کا بائبل مقدس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا ریفرنس جو ہے دھروو راٹھی نے اپنی ویڈیو میں دیا۔ اب یہ کلیئرلی خدا کے فائنل ٹیسٹمنٹ کی نفی ہے کہ اگر کوئی بھی کرسچن بائبل مقدس کے علاوہ کسی بھی اور کتاب یا کسی بھی اور عالم کی لکھی ہوئی کمنٹری سے بائبل مقدس کے واقعات کی تصدیق کرے۔ اسی لیے دوستو، بائبل مقدس ایک سپریم بک ہے اور آلموسٹ ہر سائنٹسٹ، ہسٹورین اور انجینئر بائبل مقدس سے ہی اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس ویڈیو میں دھروو نے ایک بہت اچھی بات کی کہ اس نے بائبل مقدس کو اپنا سورس آف انفارمیشن بنایا، نہ کہ کسی جوئش عالم کی کامنٹری کو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ بائبل مقدس کو چیپٹر 1 سے لاسٹ چیپٹر تک بہت آسانی سے ایک سیکوینس میں پڑھ سکتے ہیں، اور خدا کے پاک کلام میں آپ کو ایک تسلسل ملے گا جو کہ خدا کے کلام کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بائبل مقدس میں نبیوں کی زندگی اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کے بارے میں چیپٹر وائز ڈیٹیل ملے گی، اور اگین واقعہ ڈیٹیلڈ ہوگا جس میں آپ کو کسی قسم کا تسلسل ٹوٹتا ہوا نہیں ملے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر نان کرسچنز کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بائبل مقدس بدل گئی ہے کیونکہ خداوند خدا نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اور اس بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ 10 سال کے بچوں کو بھی یہی بات سکھائی جاتی ہے جبکہ انہوں نے اسکرپچرز کو پڑھا ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم اسکرپچرز کو دیکھیں تو اس میں ایک بھی ایسی ورس نہیں جہاں پہ خداوند خدا نے خود کہا ہو کہ میں توریت، زبور، انبیاء کے صحائف اور انجیل کی حفاظت نہیں کروں گا۔ انفیکٹ اسکرپچرز میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے مگر میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ سائنٹسٹ، ہسٹورینز اور انجینئر دھروو جیسے بھائی بھی بائبل مقدس کے سورس کو زیادہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس کو میں نے 6 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ چیپٹر 1، سملر سٹوریز کا کوانسیڈنس اور ابراہیمک ریلیجن۔
दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट में इंजीनियर ध्रुव ने बहुत अच्छे तरीके से एक फिल इन द ब्लैंक के जरिए डिफरेंट मज़हब के वाकयात को एक तरह दिखाने की कोशिश की। कुछ इसी तरह की प्रेजेंटेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक फ्रूट है जिसके एंड की स्पेलिंग PPLE है। ये फ्रूट दिखने में रेड कलर का है और इसको जब आप छील के खाते हैं तो पहली बाइट ही बहुत रसीली होती है। आपके मुंह में इस फ्रूट की मिठास का टेस्ट फौरन आता है। दोस्तों आप 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि मैं किस फ्रूट की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं क्रैब एप्पल की बात कर रहा हूँ। दोस्तों कुछ इसी तरह की इंजीनियरिंग हमारे ध्रुव भाई ने बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को मिलाकर की। दोस्तों इस वीडियो के स्टार्ट में जो प्रेजेंटेशन उन्होंने मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी पे दी, उसको अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो वो जेनेसिस चैप्टर 11 टू जेनेसिस चैप्टर 25, इसके अंदर मुकद्दस इब्राहिम की कंप्लीट जिंदगी और वाकयात आपको मिलेंगे। क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मैं उसको पढ़ नहीं सकूंगा, लेकिन आप जरूर बाइबल मुकद्दस में पढ़ें और मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी के बारे में आप जानें। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो इस वीडियो में बताए गए जो कि बाइबल मुकद्दस में थोड़े से डिफरेंट है और मैं अब उनको आपके साथ शेयर करता हूं। खुदावंद खुदा मुकद्दस इब्राहिम को चुनते हैं और उनको कहते हैं कि मैं तुझे एक प्रॉमिस लैंड देता हूं और मैं तुझे एक कौम बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा मुकद्दस इब्राहिम को बोलते हैं कि जो सरजमीन मैं तुझे देने को हूं उसकी तरफ चल पड़। अब दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर खुदावंद खुदा ने सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस इब्राहिम को ही हुक्म दिया है, लेकिन मुकद्दस इब्राहिम अपने नेफ्यू मुकद्दस लूत को भी अपने साथ ले जाते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल मुकद्दस लूत का जो दर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस इब्राहिम के नेफ्यू का है। मेरे अजीजों अब हम बात करेंगे इब्राहिमिक रिलीजन टर्मिनोलॉजी पे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इब्राहिमिक रिलीजन जैसी कोई टर्मिनोलॉजी बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखी। ये ऐसे ही है जैसे क्रिश्चियंस को सब कॉन्टिनेंट में ईसाई बोला जाता है, जबकि लफ्ज ईसाई किसी भी स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा। क्रिश्चियंस अपने आप को मसीही बोलते हैं और बार बार समझाने के बावजूद भी क्रिश्चियंस को मसीही नहीं बल्कि ईसाई बोला जाता है। इसी तरह इब्राहिमिक रिलीजन की टर्म भी है जिसके साथ क्रिश्चियंस का कोई ताल्लुक नहीं। और मैं इंजीनियर ध्रुव से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आने वाली वीडियोस में भी प्लीज इस टर्मिनोलॉजी को क्रिश्चियंस के साथ यूज ना करें, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं बल्कि खुदा के साथ रिलेशनशिप है। दोस्तों क्रिश्चियनिटी में खुदा को गुनाह से नफरत है, गुनहगार से नहीं। चाहे वो कोई एथियस्ट हो या किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, खुदावंद खुदा चाहते हैं कि हर इंसान अपने गुनाह से तौबा करे और आसमान में इंटरनल लाइफ पाए। क्रिश्चियनिटी में अपोस्टेट की कोई सजा नहीं और उसकी फैमिली को भी उसके साथ बॉयकॉट करने का कोई हुक्म नहीं। इसी तरह तौहीन की भी कोई सजा बाइबल मुकद्दस में दर्ज नहीं। चैप्टर 2 लफ्ज खुदा और मुकद्दस आदम एंड ईव की रियलिटी। दोस्तों इस वीडियो में उन्होंने ये भी बताया कि लफ्ज खुदा, भगवान या तमाम अल्फाज जो हैं जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में बोले जाते हैं, उनमें से मैं शायद कोई भी एक वर्ड खुदा के लिए यूज कर लूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस और ना ही क्रिश्चियंस किसी भी जुबान की बंदिश में नहीं है। इसीलिए किसी भी जुबान में खुदा के लिए जो भी जेनेरिक नाम होगा उसको बिल्कुल बोला जा सकता है, बस वो नाम किसी के खुदा के साथ मुंसलिक ना हो। जैसे कि खुदा को हिब्रू में एलोहीम कहते हैं, अरामाइक में ई से या आई से इला बोलते हैं, अरबिक में अल इला बोलते हैं, इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, हिंदी में परमेश्वर बोलते हैं और उर्दू में खुदा बोलते हैं। वीडियो में आगे बाबा आदम और अम्मा हवा की जिंदगी के बारे में एक्सप्लेन किया गया। दोस्तों बाइबल मुकद्दस में से जेनेसिस चैप्टर 2 टू जेनेसिस चैप्टर 3 आप इस पूरे वाक्य को खुद पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्या सच्चाई लिखी है। लेकिन इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि खुदा के डिवाइन प्लान को रिवील करता है अपनी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, और ये वो डिवाइन प्लान है जो खुदा ने इंसान की निजात के लिए बनाया था और उसको मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं। तो दोस्तों क्योंकि बाबा आदम और अम्मा हवा से खुदावंद खुदा की डिसोबीडियंस हो गई थी, इसीलिए जब उन पे सजा का हुक्म हुआ तो उसी टाइम खुदावंद खुदा ने इंसान की सल्वेशन का डिवाइन प्लान भी रिवील किया कि औरत की नस्ल से सांप के सर को कुचला जाएगा। याद रखिएगा नस्ल मर्द से चलती है, मगर यहाँ पे खुदावंद खुदा ने हमें बता दिया कि गुनाह और मौत से इंसान को निजात कैसे मिलेगी। दोस्तों इसी बात की वजह से औरत का इतना बड़ा मुकाम हुआ कि खुदा का कलमा खुदावंद अल मसीह एक कुंवारी से पैदा हुए, और यही वजह है कि बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारी औरतों का जिक्र मिलता है जो कि नबियां थी, जज थी और अपने लोगों की लीडर्स भी थी। चैप्टर 3 रियलिटी ऑफ प्रॉफिट नोआ।
क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नू बुलाते हैं। इस क्लिप में भी आप देख सकते हैं कि ये बयान कर रहे हैं कि मुकद्दस नू का जो क्रिश्चियन नाम है वो नोआ पुकारते हैं और जो मुस्लिम है वो नू पुकारते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। उनका जो नाम है वो इंग्लिश में नोआ है और उर्दू तर्जमे में उनको नू बोला जाता है। तो प्रॉफिट नू या प्रॉफिट नोआ ये सेम ही है और बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश तर्जुमे में नोआ नाम है और उर्दू तर्जुमे में नू नाम, तो इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं। इसी तरह दोस्तों होली बाइबल में अगर आप मुकद्दस नू के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर जेनेसिस चैप्टर 6 से लेकर जेनेसिस चैप्टर 9 तक जरूर पढ़े। वहां पे आपको मुकम्मल डिटेल इस वाक्य के बारे में मिल जाएगी और वहां पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान किया गया है कि जब तूफान रुक गया तो खुदावंद खुदा ने मुकद्दस नू के साथ एक वादा किया। उनसे वादा लिया नहीं गया बल्कि उन्होंने वादा किया कि अब मैं इंसान को पानी के तूफान से हलाक नहीं करूंगा। इसके बाद उन्होंने एक बुक का जिक्र किया जिसका नाम है एपिक ऑफ गिलगमेश, जिसमें उन्होंने रेलेवेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि मुकद्दस नू की जो सच्ची रियलिटी है वो एपिक ऑफ गिलगमेश में मौजूद है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियंस ने पहले ही इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट और इसको रिफ्यूट कर चुके हैं। तो अगर आप इस कहानी को देखें भी तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन नहीं है, क्योंकि जो कश्ती उसमें यूज की गई है वो एक स्क्वायर बॉक्स की तरह है और वो कभी भी पानी पे टिक नहीं सकती। जबकि इसके बरक्स अगर आप मुकद्दस नू के तूफान को देखें तो बाइबल मुकद्दस में वहां पर कश्ती बनाने की प्रॉपर मेजरमेंट्स मिलती हैं। और अगर आपका कभी यूएसए जाना हो तो वहां पर क्रिश्चियन म्यूजियम में मुकद्दस नू की कश्ती उन्होंने बनाई हुई है प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ, जो कि कई 100,000 साल पहले बाइबल मुकद्दस में दर्ज है और इसके हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। आप आज भी नेशनल जियोग्राफी या हिस्ट्री के चैनल्स ओपन करें तो वो आपको मुकद्दस नू की कश्ती के एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। चैप्टर 4 जस्टिफिकेशन ऑफ आइडल वर्शिप। दोस्तों एज अ क्रिश्चियन मैं आपको पूरे एतमाद से ये बता सकता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में ना तो किसी स्टैचू या पत्थर को सजदा करना, चूमना या सलाम करना ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बाइबल की तालीम के अगेंस्ट है। इसी तरह किसी भी कब्र को सजदा करना, उसको चूमना या उसको सलाम करना ये बिल्कुल खुदा के कलाम की नफी है, ये खुदा के कलाम के अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा के अलावा किसी भी इंसान को, पत्थर को, कब्र को ना सजदा किया जा सकता है ना उसकी ताजीम की जा सकती है। अच्छा, अब क्रिश्चियनिटी में इन्होंने स्टैचूज की बात की जिनको कुछ मखसूस किस्म के लोग एज अ डेकोरेशन चर्चेज में यूज करते हैं और उनकी वर्शिप करना या उनको सजदा करने से उसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसको भी हम कंडेम करते हैं। मोस्टली पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस बड़ा ओपनली इस चीज कंडेम करते हैं कि इस तरह के डेकोरेशन पीसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा उन्होंने तस्वीर बनाने की बात की। क्रिश्चियंस ने कभी नहीं कहा कि तस्वीर, वीडियो या स्कल्पचर्स बनाना डेकोरेशन के पर्पस से हराम है। अलबत्ता उसकी वर्शिप करना, उसको सजदा करना, उसको चूमना या उसको सलाम करना बिल्कुल गलत है। इसीलिए आप देख लें कि जैसे ही क्रिश्चियंस ने फोटोग्राफी और वीडियो मेकिंग को एडवांस किया तो आज पूरी दुनिया इससे फायदा उठा रही है। हालांकि जब ये चीजें इन्वेंट नहीं हुई थी तो दुनिया पिक्चर्स और वीडियो बनाने के खिलाफ थी, लेकिन क्रिश्चियंस दुनिया को रास्ता दिखाने वाले हैं तो आज पूरी दुनिया में इस इन्वेंशन से फायदा उठाया जा रहा है और इसको आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करती है। अब अगर आप देखें तो क्रिश्चियंस ने अंबिया की जिंदगी पर मूवीज भी बनाई हैं जिनको आज पूरी दुनिया के लोग बड़े फख्र से देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो के उस कैरेक्टर को या उस एक्टर को हम वो नबी मान रहे हैं या वो प्रॉफिट मान रहे हैं। वो एक सिर्फ एक्टर है जो कि उस फिल्म में या उस मूवी में काम कर रहा है, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। और बिबलिकली उन तमाम मनाजर को फिल्म की सूरत में दिखाया जा रहा है कि हम उसको देखें और उससे सबक हासिल कर सकें कि अंबिया को खुदा ने कितनी बरकत दी। अगेन मैं इस बात पर मोहर लगाता जाऊं कि तस्वीर बनाना, वीडियो बनाना, कोई स्कल्पचर बनाना या डेकोरेशन पीस बनाना क्रिश्चियंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने आइडल वर्शिप को बाइबल मुकद्दस में से जस्टिफाई करने की कोशिश की और उन्होंने 3 हवाला जात दिए और ये तीनों हवाला जात आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर आप इनको पढ़ें, और वो बार बार चेरब का जिक्र कर रहे थे, तो दोस्तों अगर आप इनको डिटेल में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये आर्ट ऑफ कॉवेनेंट यानी कि अहद के संदूक की बात हो रही है और दूसरे हवाला में टेम्पल के इंटीरियर
की डेकोरेशन की बात हो रही है। और इससे आपको पता चलता है कि जो ध्रुव ने आपको बताया कि खुदावंद खुदा को किसी और का मुजस्समा पसंद नहीं लेकिन अपना पसंद है, ये बिल्कुल बात गलत है। बाइबल मुकद्दस में आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर और बड़ा बोल्डली आपको मिलता है कि मुख्तलिफ अंबिया ने इसके बारे में तालीम दी। इसी तरह अगर आप दानियल नबी का सहीफा पढ़ें तो वहां पर भी आपको सिदरक, मिसक और अब्दुन्नजू की कहानी मिलती है, जिनको ये हुक्म था कि वो बादशाह को सजदा करें, बादशाह के मुजस्समे को सजदा करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसकी वजह से उनको आग की भट्टी में भी डाला गया और खुदावंद की कुदरत की वजह से उस जलती हुई आग में भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। और ये भी बाइबल मुकद्दस में एक मौजज़ा दर्ज है। तो बाइबल मुकद्दस में किसी भी स्टैचू को सजदा करना, चूमना या उसको सलाम करना या उसकी इबादत करना बिल्कुल मना है। और दोस्तों मैं आपको आर्ट ऑफ कॉवेनेंट यानी अहद के संदूक के बारे में भी बताता चलूं कि बनी इसराइलियों को खुदा ने ये अहद का एक संदूक दिया जिसके अंदर उन्होंने वो 2 टैबलेट्स रखी जिसके ऊपर 10 कमांडमेंट्स लिखे हुए थे। इसके अलावा मुकद्दस हारून का आसा था और एक पॉट था जिसके अंदर मनो सलवा रखा गया। चैप्टर 5 डिसबिलीवर कौन है? अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी डिसबिलीवर वो शख्स है जो कि अकीदा तौहीद की यूनिकनेस को ना माने, खुदावंद अल मसीह की दुनिया में मौजूदा पैदाइश को ना माने, इंसान की सल्वेशन के लिए कुर्बानी और उनका मुर्दों में से जी उठने को ना माने। तो क्रिश्चियंस के यहाँ वही शख्स डिसबिलीवर है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, कोई भी शख्स चाहे वो यहूदी हो, मुस्लिम हो, एथियस्ट हो, हिंदू हो या किसी भी रंग और नस्ल के साथ उसका ताल्लुक हो, एक क्रिश्चियन को ये हुक्म है कि वो उससे मोहब्बत करे। मेरे मसीहा ने हमें ये तालीम दी कि अगर तुम अपनों से ही मोहब्बत करते हो तो क्या बड़ा करते हो, दूसरों से मोहब्बत करो। तो इसीलिए दोस्तों क्रिश्चियन किसी भी इंसान का दोस्त हो सकता है, किसी भी इंसान उसके रंग, नस्ल, मजहब को एक साइड पे करके उसके साथ खाना खा सकता है और किसी भी शख्स के अकीदे के बेस पे क्रिश्चियंस उनके साथ नफरत नहीं कर सकते। इसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों के वर्सेस लिए और उनको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए इस तरीके से दिखाया कि अगर आप इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ें तो किसी भी स्क्रिप्चर को लेकर लड़ाई की जा सकती है, ये दहशतगर्दी फैलाई जा सकती है। और इसमें दोस्तों आप बाइबल मुकद्दस की बात आपको ये बताना चाहूंगा कि आप उसकी किसी भी वर्स का पहला चैप्टर पढ़ें और उसके बाद का चैप्टर पढ़ें तो आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का जिंदा और ला तब्दील कलाम है वो एक सीक्वेंस में खुदावंद खुदा ने लिखवाया, इसीलिए उस वर्स को आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज कर ही नहीं सकते। इन्होंने जो हवाला जात भी दिए, अगर आप उनकी 2-3 आयत भी ऊपर पढ़ लें तो फिर भी आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 6 बनी इसराइल का प्रॉमिस लैंड और फाइनल चार्ट। दोस्तों इस वीडियो के आखिर में इंजीनियर ध्रुव एक बार फिर उसी कहानी को कंप्लीट करते हैं जो स्टार्टिंग में उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी और जिसमें उन्होंने मुकद्दस इब्राहिम की जिंदगी के बारे में बताया था। और उसमें ये बताते हैं भगवान प्रॉमिस करते हैं इब्राहिम को ये सारी जमीन कनान की, और कनान की डिस्क्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है, ये वो जगह है जो इजिप्ट की वादी से यूफ्रेटिस नदी तक जाती है, यानी कि आज के दिन का इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा, जॉर्डन और सीरिया और लेबनान का कुछ सदर्न एरिया इस सब जमीन में आता है। ये सारा इस जमीन का हिस्सा माना जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बताता जाऊं कि आप बनी इसराइलियों को अगर आज भी देखें तो वो पूरी दुनिया पे कहीं पे अटैक नहीं कर रहे। आप कभी नहीं सुनेंगे कि बनी इसराइल लड़ रहे हैं कि वो पाकिस्तान या इंडिया पर कब्जा कर लें। अगर आप उनको देखें तो वो बोलते हैं कि ये हमारा प्रॉमिस लैंड है, ये हमारा फादर लैंड है जो कि खुदावंद खुदा ने हमें दिया। इसके बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में वो एक चार्ट दिखाते हैं जहां से वो बताते हैं कि डिवीजन इन मज़ाहब में कैसे हुआ, और उसमें जो वो चार्ट दिखाते हैं वो चार्ट क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मैं इस चार्ट को आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मुकद्दस इब्राहिम और मुकद्दसा सारा से जो प्रॉमिस सन पैदा हुए वो मुकद्दस इसहाक हैं, और उनसे मुकद्दस याकूब पैदा हुए जिनको बनी इसराइल भी कहा जाता है और जिनके 12 बेटे थे और वो बनी इसराइलियों के 12 कबीले कहलाए। इनमें से एक कबीला जो यहूदा का कबीला है उनमें से मुकद्दस दाऊद पैदा हुए, और मुकद्दस दाऊद से मजीद आगे नस्लें पैदा हुई। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता जाऊं कि इन्हीं की नस्ल से मुकद्दसा मरियम पैदा हुई, जिनके वसीला से खुदावंद खुदा ने अपने कलाम को, खुदावंद अल मसीह को इस दुनिया में मुजस्सम किया। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी ये चार्ट है, इसमें बनी इसराइल और क्रिश्चियंस ये नहीं कहते कि मुकद्दस इसहाक के जो डिसेंडेंट है वो इसराइली हैं, और क्रिश्चियन ये बोलें कि मुकद्दस इसहाक के जो डिसेंडेंट है वो खुदावंद अल मसीह हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो चार्ट है ये आपको बताता है कि इसकी जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो आपकी स्क्रीन पे है।
دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کرسچن پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے آیا ہوگا، اور میں انجینئر دھروو راٹھی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جب آنے والی اپنی ویڈیوز بنائیں، جس کا ذکر انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کہ وہ مزید ریلیجن پہ ویڈیو بنائیں گے، تو پلیز کسی کرسچن عالم سے ضرور کنسلٹ کریں تاکہ ہمیں اس طرح کے رپلائی بنا کے ویڈیو اپلوڈ نہ کرنی پڑے۔ اور دوستو جیسا کہ میں نے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ بہت سارے سائنسدان اور بہت سارے انجینئر جنہوں نے بائبل مقدس کی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی، یا جو بڑے سائنسدان آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ موجود ہیں، ان کے لیے بھی میں ویڈیوز بنانا شروع کروں گا اور آپ کو بائبل مقدس یا کرسچن پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کرسچینٹی کے اگینسٹ انٹرنیٹ پہ پھیلایا جا رہا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کو میں ایک کرسچن نقطہ نظر سے آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ شلوم، سلام المسیح۔